Hello everyone, welcome to RS Educorner. So we have already covered 3 classes of photosynthesis. In our first class, we have discussed about the introduction of photosynthesis. Then we discussed how it occurs, means what are the phases in which photosynthesis occurs. Then we discussed about light reaction, then about jet scheme, about photosystem 1 and photosystem 2. So we are now cleared about this. So in today's class we will discuss about तो एक्चुअली जदि आम ये जो फोटोफोस्फोराइलेशन आउ केमियोस्मोसिस एटा जदि आम डिस्कस करि थांते जेड स्कीम सहित तो लेक्चर आउरी लेंदी हो जाता एंड बहुत कन्फ्यूजिंग भी होता। तो जेहेतु मुझे चाहिए आम पूरा क्लीयर हवा जेड स्कीम कौन जेड स्कीम भितर कौन कौन प्रोसेस सब रोचे। तो फर्स्ट आम क्लीयर हेले व्हाट इज जेड स्कीम, देन जेड स्कीम पर आम जेड स्कीम टाइम रे मु फोटोलिसिस ऑफ वाटर ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर मु कहि देछि, फिर भी आउ थरे आम आज डिस्कस करबा। जेहेतु जेड स्कीम रे हमर तीनटा प्रोसेस होउची, गोटे होउची हमर कोन फोटोलिसिस ऑफ वाटर होउची, देन केमियोस्मोसिस होउची, देन फोटोफोस्फोराइलेशन होउची। एंड फोटोफोस्फोराइलेशन इज आल्सो ऑफ टू काइंड्स, cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. So in today's class mainly we will discuss about photophosphorylation and chemiosmosis. Clear? So just have a look. Just look at here. This is the Z scheme I have already discussed. This is the Z scheme. So today we will discuss about photolysis of water, chemiosmosis and photophosphorylation. तो जेड स्कीम आमे ऑलरेडी डिस्कस कर सारी जे टिके खाली जस्ट रिकॉल कर दोची। जेड स्कीम रे हमर कोन होतिला ना एठी हमर गोटे थिला फोटो सिस्टम 2, देयर आर टू फोटो सिस्टम्स, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1. फोटो सिस्टम 2 कैन ऑब्जर्व P680 means it can absorb 680 nanometer light intensity, and P700 means it can absorb 700 nanometer light intensity. It's clear? Then when sunlight fall on this P680 or photo system, आउ मु डिस्कस करूनी जे हमर P680 बा फोटो सिस्टम सब कोठी अछंती आ केमिति आमर एक्साइट होउजंती से हम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी लास्ट क्लास रे। जे भी क्लियर ना हो यार प्लेलिस्ट को जाई यार प्रीवियस लेक्चर टा देखि नियो, ठीक अछि। तो हमर P680 रे जते बेले सनलाइट पड़िला तो सनलाइट पड़िया द्वारा हमर एटी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है के ऊपर उठिला, ठीक अछि। बट एक्साइटेड then it is absorbed by pheophytin which is called as primary electron acceptor. Already I have discussed primary electron acceptor. So from pheophytin electron is transferred to PQ means plastoquinone. Then from plastoquinone electron is transferred to CYTB6 cytochrome B6. Then cytochrome B6 to cytochrome F, then cytochrome F to PC or plastocyanin. Okay, then again from plastocyanin the electron is transferred to photosystem 1 or P700. Clear? Then also this photosystem 1 when get excited the electrons are transferred to ferredoxin. Ferredoxin is the first electron acceptor of photosystem 1. Pheophytin was the first electron acceptor or primary electron acceptor of P680. But here ferredoxin is the first electron acceptor of P700 or photosystem 1. Clear? Then
from ferredoxin electron is transferred to NADP, and with NADP H is added hydrogen which are inside stroma. stroma रे हमर हाइड्रोजन थांती जो हाइड्रोजन माने हमर NADP प्लस सहित मिसी के NADPS तैयारी करंती. We have discussed up to this, and yes, also we have discussed that here water will break down to form hydrogen, oxygen and electron. Okay, and that process is called as photolysis of water. Okay, so what is the aim of the photolysis of water? Photolysis of water रो mainly हमारा दुईटा एम थाए. गोटे होची फर्स्ट होची एटा हमारा लुमेन को भरिया पाई. लुमेन मन पड़ुची लास्ट क्लास रे कहितली. लुमेन टा हमर थिला कोन? लुमेन टा हमर कोन थिला ना इनर पार्ट थिला कार थालाकॉइड रो. लुमेन टा कोन थिला? थालाकॉइड रो इनर पार्ट थिला जोटा कि हमर हाइड्रोजन ने भरा होउतला. So to fill lumen with the hydrogen ion we had to split the water, and also that electron is accepted by P680. तो photolysis of water करिवार हमर मुख्यतः तीनटा सुविधा हला. गोटे हला H प्लस आयन टा हमर लुमेन को जीव जा द्वारा कि हमर जेते बेले ATP फॉर्मेशन पाई सेटा हेल्प करिवो. देन आ गोटे हला ऑक्सीजन बाहरिबो जोटा कि हमर बाय प्रोडक्ट हिसाब रे बाहरिबो. फोटोसिंथेसिस रो बाय प्रोडक्ट एक बाहरला. देन अनदर थिंग इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू दिस P680. P680 टा कोन करबो ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिके पुनी से तार जेमती इलेक्ट्रॉन हमर ट्रांसपोर्ट हबा कथा जो चेन ने चलला. सो अप टू दिस वी हैड डिस्कस्ड. ओके, तो आमे एटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर शेप को देखि आमे कहउथिले जे दिस इज द जेड स्कीम ड्यू टू इट्स शेप. ओके, तो ए जेड स्कीम रे आमे देखिले जे एठू हमर इलेक्ट्रॉन आसिला. ओके, देन एठू इलेक्ट्रॉन एठी की आसिला. अगेन इलेक्ट्रॉन एठी की गला. ठीक अछि, electron is transferred from P680 to PO15, then from PO15 to P700, and from P700 to FD, then from FD to NADPH. Clear? If FRS जदि आमर FRS गोटे सब्सटेंस एठी रहुची, then this FD is converted to NADP plus. Clear? जदि आमर FRS रहुची, FRS means ferredoxin reducing substance. तो ferredoxin को जोटा आमर reduce करिवो to form NADP plus. ओके, तो जदि आमर एठी FRS बा ferredoxin reducing substance रहुची भलसे बुझिबा. एठू ही हमें क्लियर हबा फोटोफॉस्फोराइलेशन जो एठू ही क्लियर हबा. एठी होची सब पॉइंट जे जदि हमर ferredoxin reducing substance एठी रहुची, then ferredoxin is reduced to NADP plus, then it is added to hydrogen, and when hydrogen added to NADP, then NADPH is formed. NADPH हमर फॉर्म हे गला. तापरे जोडा हमर रिएक्शन जेंते आगो को चलिया कथा चलिबो. ठीक अछि, बट if FRS is absent here, then what will happen? जदि हमर FRS एठी रहुनी, FRS थिले हमें NADPH सहज रे पाई परछे. हमर लाइट रिएक्शन नो काम कोन? एक्चुअली हमर सुगर आ NADPH जो पाइबा सेटा हमर डार्क रिएक्शन ने यूज होबो. ठीक अछि, तो NADPH तो हमें ऑलरेडी पाई गले. तो जदि हमर FRS substance present रहुची, then हमर NADPH मिलुची. But if this FRS or ferredoxin reducing substance is absent, then this electron will transfer through plastoquinone. PQ पाखु सीधा इलेक्ट्रॉन पळे आसीबो. ठीक अछि, जदि एठी ferredoxin substance नाही, then FD जो इलेक्ट्रॉन छाड़िबो, FD ता इलेक्ट्रॉन को ता भीतर रखी बसिबो ना.
एठू इलेक्ट्रॉन एक्साइड है एठी पळेला तो आ भीतर जेतले इलेक्ट्रॉन एक्साइड हे जिवो से चाइबो तार नेक्स्ट रे जे अछि नेक्स्ट स्टेट रे जे अछि ताकू देबा पई तो एठू कोन हबो ना FD कोन करिवो सीधा FQ को ट्रांसफर करिवो देन FQ को ट्रांसफर कला परे अगेन सेटा जेंते हमर फ्रॉम प्लास्टोक्विनोन टू साइटोक्रोम B6 फ्रॉम साइटोक्रोम B6 to cytochrome F and from cytochrome F to PC again to P700 again to FD. So this is a cycle. Clear? Now two things you found here. One was electron transfer from here and it ends at this. Okay? Then another thing, electron is excited and transferred to here. Then from here it is transferred to here. Okay, this is cyclic. एठी इलेक्ट्रॉन हमर कोन होतिला गला एठी के आसिला जेड शेप नेला पूरा ए पर्यंत गला आ रिटर्न गलानी का पाखकू दैट्स व्हाई दैट इज अ नॉन साइक्लिक कहबी फोटोफॉस्फोराइलेशन कोन कहबी बट एटा नॉन साइक्लिक कोन साइक्लिक कोन हमें बुझिबा आगे तो नॉन साइक्लिक जानिले then cyclic कोन हला ना if FRS is absent then electron of ferredoxin is transferred to plastoquinone and the electron transport system again continued. Okay, तो एटा ओटा हमर cyclic हे गला. So this is called as cyclic photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation. So photophosphorylation, just split the words. Photophosphorylation. So photo means light, phospho means phosphate group, P group or phosphate group, then rylation means manufacture. So photophosphorylation means manufacturing of ATP from ADP and IP. ADP, that is adenosine diphosphate, means two phosphates are here. Two phosphates are attached here to adenosine. Okay. Then when an inorganic phosphate is added to ADP, then that will converted to ATP, adenosine triphosphate. Clear? तो चेंज हो जे हमर कोन एठी थिला डाइफॉस्फेट दुईटा फॉस्फेट थिला एठी हला एटीपी रे हला तीनटा फॉस्फेट हला. ओके, तो चेंज हो जे हमर कोन फॉस्फेट ग्रुप टा चेंज होउची सेत पे हमर को हला फोटोफॉस्फोराइलेशन जेहेतु हमर फॉस्फेट ग्रुप एठी चेंज होउची. फोटो काहे के कहउची दिस एंटायर प्रोसेस इज कंडक्टेड बाय लाइट और फोटो, दैट्स व्हाई इट इज photophosphorylation. Clear? First clear about photophosphorylation, then we will discuss about non-cyclic and cyclic photophosphorylation. Already I have discussed that this is the only depending upon the transfer of electrons and the shape is Z shape or that is non-cyclic. Clear? Then this is cyclic photophosphorylation. Clear? तो जदि फोटोफॉस्फोराइलेशन हमको पड़ी नॉन साइक्लिक और साइक्लिक रो आमे अलगा अलगा करबा. नॉन साइक्लिक बेले ए जिंस एंड एस लुक एट हियर when electron is transferred from this ferredoxin to if FRS or ferredoxin reducing substance is absent, then electron from ferredoxin is transferred to PQ or plastoquinone and at that time ADP plus IP will make an ATP. एठी हमर गोटे ATP तयारी हबो. ठीक अछि. आ गोटे ATP कोड तयारी हबो एटा हमरा नॉन साइक्लिक रे भी जाउची आउ साइक्लिक रे भी जाउची. when electron is transferred from cytochrome B6 to cytochrome F, at that time also one ATP is produced. Clear? Then let's discuss about chemiosmosis. The light reaction le mainly we have to clear about four things.
one is jet stream, clear, one is jet stream, then photolysis of water, then chemiosmosis and photophosphorylation. So we discussed about photophosphorylation, non-cyclic and cyclic photophosphorylation. तो एबे हमें बुझिबा chemiosmosis कौन, and yes, photolysis of water also I have already discussed. तथापि आउ टिके कहि देबी मु एठी, तो मेनली हमें एठी बुझिबा chemiosmosis. तो chemiosmosis कौन, just look at here I have drawn, देखो एठी मु गोटे थालाकॉइड रो चित्र करिछि. ए थालाकॉइड कोन मु बुझौनी, हमर ग्रानम रे जो पाइल्स ऑफ स्टॉक रहले मु जस्ट गोटे थालाकॉइड रो डायग्राम नै कि बुझैछि. बढ़िया डायग्राम टा नीट पिलांग बुक रो आनिछि, एकदम बढ़िया डायग्राम. एटा जदि हमें क्लियर हो गले देन केमिओस्मोसिस हमें एकदम भले से बुझिबा. आ केमिओस्मोसिस ही होछि हमर मेन जिंस जोठी हमर एटीपी सिंथेसिस होछि, दैट प्रोसेस इज केमिओस्मोसिस. तो पढिबा. So this is thylakoid and this is the outer membrane of thylakoid and this is inner membrane of thylakoid. Then this inner membrane of thylakoid is called lumen. Clear? Inside lumen there are some hydrogen ions. Okay? And outside the thylakoid, outer membrane of thylakoid there is stroma. Clear? So inside lumen there are some hydrogen ions, and here we have PS2, photosystem 2, photosystem 1, and here there is a particle that is F0 and F1 particle. Clear? तो यार काम कौन आम बुझा. तो कौन हुए ना जेते आमर साधारणतः हाइड्रोजन आयन आमर एटीपी सिंथेसिस पाई मेन एम होची कोन, आमर थालाकॉइड रहिला बहुत सारा हाइड्रोजन रहिला. मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज हायर इन स्ट्रोमा बट लोअर इन लुमेन. तो इनसाइड आमर जते लुमेन रे आमर कम हाइड्रोजन रहिला ताहेले हाइड्रोजन आमर सिना एपट दे के आसिले ए F1 पार्टिकल आमर थाय एटीपी सिंथेटेस एंजाइम जोटा कि आमर एटीपी को कन्वर्ट करिवो एटीपी रे. ओके, तो सेति पे हम कोन करा पय पड़िबो, वी हैव टू फिल दिस लुमेन विथ H+ आयन्स. तो लुमेन टा को हमें जदी H+ आयन ने भरि दबा मींस यार लुमेन न जदी कंसंट्रेशन टा हमर अधिका हेइ जिवो हाइड्रोजन आयन न, देन हाइड्रोजन्स विल पास थ्रू दिस वे. क्लियर और नॉट? हमर बाहर अधिका अछंती, तो जोटी अधिका थी सब कौन कम आड़ को आसो, बाहर थिले माने भितर को आसा चाहिए, तो एठी जते अधिका हो से भी चाहिए आम बाहर को जावाई. सिंपल प्रोसेस. ओके, तो ये आम हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़िया, हाइड्रोजन आयन ये बढ़िया आम फास्ट कौन कले ना वाटर अच्छी ये आम रहा फोटोसिस्टम 2. तो वाटर रहा, वाटर को आम ब्रेकडाउन कले. ओके, so when water is breaked we got hydrogen ion, oxygen and some electrons. balancing मु करूनी बतई थिले आगरो. एटे हमें 2 हाइड्रोजन पाइबा and half oxygen पाइबा. तो एट ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, एट बतई सारी सी जे PS2 रे हमर केमती वाटर ब्रेकडाउन होउची. तो वाटर ब्रेकडाउन हैला बेले हमर एठी किछि हाइड्रोजन आयन मिलिला. ओके, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट. एटा हमर लुमेन ने हाइड्रोजन कंसंट्रेशन टा बढ़िया पाई बा हाइड्रोजन आयन बढ़िया पाई दिस इज नॉट सफिशिएंट. तो आउ कोन हबो ना हमर स्ट्रोमा रे रहिला हाइड्रोजन. देखो एठी वाटर ब्रेकडाउन हैला, वाटर ब्रेकडाउन है कि हाइड्रोजन आसिला, आउ ऑक्सीजन आसिला, आउ इलेक्ट्रॉन आसिला. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर. This is breakdown of water in presence of light to get hydrogen, oxygen and electron is called photolysis. Lysis means breakdown. Water ta breakdown hela. So photolysis in presence of light. That's why it is photolysis.
तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है हमको हाइड्रोजन मिलला, ऑक्सीजन टा बाय प्रोडक्ट हिसाब रे मिलला एंड इलेक्ट्रॉन टा यूज हैला PS2. But this amount of hydrogen ion is not sufficient to fill the lumen for production of ATP. क्लियर? तो ताहले हमरा आउ कोठो आसीबो हाइड्रोजन आयन? स्ट्रोमा रे सब हाइड्रोजन आयन भरी पड़ी चंदी हम कहले कि स्ट्रोमा रे हमरो हाइड्रोजन नो आयन बहुत अधिका. तो एठी हमर जो साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F जेड स्कीम रे पढैली दुटा केमिकल हमर थांती साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम F. They will pass hydrogen ion from stroma to lumen. Clear? साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F जो रहिले से माने कोन करबे किछि हाइड्रोजन आयन हमर स्टोमा रो आनी के लुमेन रे भरिबे. क्लियर? तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हेतिला किछि हाइड्रोजन आयन आसीतिला आउ किछि हाइड्रोजन आयन हमर आगरो लुमेन रे थिला एंड आउ किछि हाइड्रोजन आयन हमर साइटोक्रोम B आउ F आनिले कोडू स्ट्रोमा रो. तो तीनटा सोर्स रो वर्तमान हाइड्रोजन आसी के हमर पूरा हाइड्रोजन पूरा लुमेन टा भरी गला हाइड्रोजन ने. ओके, नाउ दिस हाइड्रोजन आयंस विल पास थ्रू दिस F0 एंड F1 पार्टिकल. ए पट देकी हाइड्रोजन आयन ओडा पुणी चाहिबे हमें पास करिया पई. जेते बेले F0 दिस इज F0 पार्टिकल एंड दिस इज F1 पार्टिकल. तो ए जो F1 पार्टिकल रहिले देयर इज ATP सिंथेटेज. ATP सिंथेटेज नामक गोटे एंजाइम रहिला. मु कहितले लास्ट क्लास रे जे सिंथेटेज हमें देखुथिबा मींस सिंथेसिस मींस को गोटे जिंस से तैयारी करबा से एंजाइम. तो एठी जेहेतु ATP सिंथेटेज थिला दैट विल प्रोड्यूस ATP फ्रॉम ADP. ADP इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. सेथिरे से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिसे बाहर करबा हमर कोन ATP. सो ATP इज जनरेटेड. This process is called as chemiosmosis. ए जो हमरो हाइड्रोजन आइला ATP सिंथेटेज F1 पार्टिकल थिबा जोगु ATP प्रोडक्शन हैला. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज chemiosmosis. क्लियर? तो केतरा क्वेश्चन हमें आज रो क्लास रे डिस्कस करले. व्हाट इज chemiosmosis, व्हाट इज photolysis of water, व्हाट इज photophosphorylation and what are the different photophosphorylation. Clear? So in the next class we will discuss dark reaction.